بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے اس کا مین مقصد ہے ان شہداء کو شردھانجلی ارپت کرنا جو ایران میں، لبنان میں، فلسطین میں شہید کر دیے گئے ظلم کے ساتھ۔ کیونکہ ہم نے جو پروگرام 15 اپریل 2026 کو نماز مغرب کے بعد کربلا کے میدان میں رکھا ہے، اس کا بھی عنوان ہمارا انہی شہداء کو شردھانجلی ارپت کرنا ہے۔ تعزیتی پروگرام رہے گا اور ہم اپنی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر بھی کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا عالم، پوری دنیا اس ظلم پر تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کیا انسانیت کا رشتہ نہیں ہے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ جہاں تک جیسے بھی ہم ان کے ساتھ دے سکتے ہیں، زبان سے ساتھ دے سکتے ہیں تو زبان سے ساتھ دیں، اور دوسرے طریقوں سے اگر ہم ساتھ دے سکتے ہیں تو دوسرے طریقوں سے ہم ساتھ دیں۔ لیکن یہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم اپنے ملک کی جو حکومت ہے اس سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اب تک جس طریقے سے مظلوم کے ساتھ ہونے کی اپیل کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ لہذا جہاں بھی جو بھی جس طریقے سے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس ملک میں صرف مسلمانوں نے ہی جو ہے وہ احساس ہمدردی نہیں کیا، بلکہ ہمارے ملک کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، انہوں نے بھی، جس کے یہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے، اس نے اظہار افسوس کیا ہے اور اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے کہ ہم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے جو ہے ایران کے ان زخمیوں کے لیے، لبنان کے ان زخمیوں کے لیے جو امداد یہاں سے جا رہی ہے، جو دوا کی شکل میں ہے، ان کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ ڈونیشن کر رہے ہیں، جبکہ ایران نے نہیں کہا ہے ہمیں کوئی ڈونیشن نہیں چاہیے، لیکن یہ احساس ہمدردی ہے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا انسانیت کی ہم پر ذمہ داری ہی یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے کہیں بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے پر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک پریس کانفرنس بھی آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو اب تک ہم سے نہیں جڑے ہیں وہ ہم سے جڑیں، اور اس تعزیتی پروگرام جو ہم نے 15 اپریل کو کربلا کے میدان میں رکھا ہے اس میں ہمارے ساتھ آئیں اور ان سب شہداء کو اور ان سب مظلوموں کو جو ہے شردھانجلی ارپت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے مہتوپورن بات یہ کہ اس پورے وار کرائم کے اندر سب کچھ بھلایا جا سکتا ہے، پر ان بچیوں کو نہیں بھلایا جا سکتا جن کے ساتھ یہ ہینیس کرائم ہے۔ دیکھیں، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جنگ کرتے ہی ان 170 کے قریب بچیوں کو جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بچوں، چلیں اگر جنگ میں مان لیا جائے کہ بڑوں کو قصوروار بھی آپ ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، ان کو درد کے ساتھ مظلومانہ طور پر جو ہے نا آپ اس ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ لہذا ان کی مائیں ان کی ڈریس، ان کے بیگ لے کے اظہار کر رہی تھی کہ کیا یہی انسانیت ہے؟ لہذا آپ دیکھیں کہ دنیا کو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ اس پروگرام کے اندر ریپرزینٹیٹیو ہیں جو سپریم لیڈر کے، ان کو آپ بلا رہے ہیں جے پور میں، تعزیتی پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا لاؤڈلی بولیے گا۔
पोस्टर दिखा रहे हैं ऐसे किसको से बता रहे हैं पोस्टर देख रहे हैं नाम का जो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं वो नुमाइंदे वली फ़क़ीह यानी सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया के जो यहाँ नुमाइंदे हैं आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा जो है जनाब सादिक हुसैनी साहब जो स्कॉलर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं कल्चर हाउस से। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब हैं जो सज्जादा नशीन है अजमेर शरीफ दरगाह, वहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब कासिम रसूल इलियास साहब हैं। जनाब डॉक्टर सूफ़ी राज जैन, ये जो पंजाब में इन्होंने कैसा जो है वो मरकज़ बना रखा है कि जो तमाम धर्म वगैरह से उठ के इंसानियत के हवाले से ये तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं आम पार्टी के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और जनाब अशोक कुमार पांडे जो उसके बुनियाद गुजार हैं, न्यूज़ चैनल है TCH, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके अलावा जनाब आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो MP हैं कश्मीर के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं इस हमारे प्रोग्राम में। इसके अलावा जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं जयपुर के, हर फ़िरक़े हर मज़हब के यानी सब कास्ट मज़हब से उठ के जो है वो हर फ़िरक़े जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। जितनी बड़ी कम्युनिटियाँ हैं ख़ास तौर से मुसलमानों की, सबके बड़े जो ओहदेदार हैं वो इसमें जो है शिरकत फरमा रहे हैं। इसमें एक मेरा सवाल ये है कि लगातार जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, आम आदमी वहाँ पे मर रहा है, नुकसान जो है आम जनता को हो रहा है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए क्या आप लोग, क्योंकि कल पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक हुई है, नुकसान ले दे के आम जनता का ही हो रहा है। नुकसान आम जनता का हो रहा है, सब दुनिया देख रही है। और अमेरिका और इसराइल के जुल्म को भी दुनिया देख रही है कि ये इंटरनेशनल जो भी जंग के कानून है, तमाम कानून को जो है इन्होंने तोड़ा है। और जंग दो सिपाहियों के दरमियान में होती है, यानी कि सामने वाला सिपाही होता है और मद्दे मुकाबिल का होता है और खुद उसका होता है, लेकिन अवाम और उसके जो है वो अफराद जो है वो उसमें नहीं शिकार होते। लेकिन इन दोनों ने जो है वो अमेरिका इसराइल ने मुसलसल जो है वो इंटरनेशनल कानून को जो है वो तोड़ा है और सिविलियंस को हमेशा निशाना बनाया। अभी जो ईरान की जंग हुई, जैसा कि आपने अभी सुना कि 168 जो है वो बच्चों को जो है वो बाकायदा जो है वो शहीद किया गया। लेकिन आप अगर उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो जहाँ वो मिज़ाइल गिर रही है उसके पीछे धुआं उठ रहा है। अब जाके उसका जो एनालिसिस हुआ है वो ये हुआ कि जो धुआं उठ रहा है वो तो स्कूल से उठ रहा है, लेकिन जो मिज़ाइल गिर रही है वो एक हॉस्पिटल पे गिर रही है। और मिज़ाइल गिरने का जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट का यानी फ़र्क है। 20 मिनट पहले स्कूल पे जो है मिज़ाइल गिरी और वहाँ से जब ज़ख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और जहाँ उनके जो है वो अजीज़ व अक़रबा आए हैं, तो फिर 20 मिनट बाद फिर हॉस्पिटल को टारगेट किया गया। यानी 168 के अलावा जो हॉस्पिटल में जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन्हें भी जो है बाकायदा जुल्म का निशाना बनाया गया। अब देखें अभी लबनान में इसराइल ने फास्फोरस का इस्तेमाल किया कि जो बिल्कुल ही जो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और आप सिविलियंस को कभी भी नहीं मार सकते। और यही हर धर्म भी कह रहा है, सारे इस्लामी लॉ भी कह रहे हैं कि जंग में जो आपके मुकाबले में आप उससे जंग लड़िए, न कि औरतों से, बच्चों से, ख़वातीन से, बूढ़ों से, इनसे जंग नहीं लड़ा जाए। लेकिन ये मुसलसल किसे टारगेट बना रहे हैं? सिविलियंस को बना रहे हैं। और इसराइल जो सियासत खेल रहा है वो ये खेल रहा है कि इन्होंने अपने जितने भी सिपाही और जो भी इनके जो फौजी अड्डे होते हैं वो इन्होंने सिविलियंस के अंदर बना रखा है, जहाँ आबादी है उसके बीच में बना रखा है। ईरान ने अभी तक कोई इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना ही इंसानियत को उल्लंघन किया। ये सिर्फ उन जगहों पे टारगेट करा कि जहाँ उसके सिपाही हैं। अब जाहिर है कि जब इन्होंने सिविलियंस के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे अड्डे बना रखे, अब जब उन पे हमला करता है तो जाहिर है कि जो उसके टुकड़े होते हैं जो उड़ते हैं वो दूसरे तक जो पहुँचते हैं उसकी वजह से वो ज़ख्मी वगैरह होते हैं। तो इन्होंने जैसा कहा कि कानून अगर कोई हम पे जुल्म करता है तो इनके मुताबिक कैसे ख़त्म होगा कि दोनों अड़े हुए हैं, तो क्या हम अड़े नहीं रहे? हम पे जुल्म हो रहा है तो हम जुल्म सहते रहे, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करें? इस्लाम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है कि जो हमारे जीने का राइट है वो हमें दो, हमें पूरी दुनिया से अलग मत करो। इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से अलग कर दिया ईरान को, सारी पाबंदियाँ लगा दी, हत्ता कि जहाज़ के पार्ट्स, दूसरी चीज़ों के पार्ट्स, मेडिकल के इक्विपमेंट जो है वो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? इन्होंने सब पाबंदियाँ लगाई हैं, ना उससे कोई लेन देन कर सकता है, ना वो आयात निर्यात कर सकता है। तो इन्होंने बाकायदा जो है वो ईरान को जो है दबाने की कोशिश किया। ईरान जो है कह रहा है कि नहीं, हम जो हमारा हक हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी जो आप देखें जो 2 शर्तें रखी इन्होंने बगैर शर्त के कि आप हुर्मुज़ को भी खोलें और यूरेनियम हमें दे, बगैर किसी शर्त के हम दे दे। तो कोई अपनी मेहनत से कोई चीज़ हासिल करे वो आपको कैसे दे देगा? तो इसमें अड़ने वाली बात नहीं है। जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करने वाले जो ईरान जो है आवाज़ बुलंद कर रहा है। और ये जो मेरा एक सवाल और है, क्योंकि ईरान नेवी भारत आई थी
युद्ध अभ्यास करने के लिए अमेरिका ने इंडियन ओशन के अंदर में उन पर बम गिराया, उसमें तकरीबन 20 से 22 सैनिक मारे गए। तो भारत के मुसलमानों की क्या भूमिका देखते हैं वहाँ पर, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक तौर से कोई बयान नहीं आया उस पर। नहीं, हिंदुस्तान के जो मुनसिफ मिजाज लोग थे, ना के मुसलमान की बात छोड़िए, जो भी मुनसिफ मिजाज थे, आप अपने चैनल आप बेहतर जानते हैं कि सब ने इस जो है हादसे की मजम्मत की है और कहा है कि ये गलत हुआ है कि आपके घर एक मेहमान आया था और उसको जो है अमेरिका ने जो है वो टारगेट बनाया। तो ना के मुसलमान, गैर मुसलमान ने भी इस बात की मजम्मत की कि आप अपने घर आए हुए मेहमान को इस तरह से जो अगर कोई आप उसके ऊपर हमला करता है तो आपको बोलना चाहिए। और यहाँ जो मुनसिफ मिजाज लोग थे उन सब ने बोला है, बगैर इसके को मुसलमान हो या ना हो। मेरा नाम हुआ सैयद अली इमाम। सवाल करेंगे तो हुआ है 40 दिन की युद्ध भी चले ईरान में, 40 दिन की जो है फौज की भी एक तरह से अनाउंसमेंट की गई। तो 40 दिन कंप्लीट होने के बाद में एक तरह से इंडिया की तरफ से एक ताज़ियती या शौक की एक अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करने की प्रतिक्रिया है जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं। और इंडिया ईरान की जो करंट सिचुएशन है, करंट रिलेशनशिप है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो शोक सभा है ये जो है उन तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो ईरान के अंदर शहीद हुए हों, लेबनान के अंदर हुए हों, फ़लस्तीन के अंदर हुए हों। पिछले 2-2.5 सालों से फ़लस्तीन के लोग भी जो है वो शहीद किए जा रहे हैं। तो उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो जंग वापस बंद होकर के और शुरू होने के हालात बन चुके हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ईरान का रवैया जो है वो बिल्कुल मुनसिफाना है। वो जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहा है उसके मुकाबले में अमेरिका जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहा है कि साहब यूरेनियम हमें दे दीजिए आप, और उसके ऊपर जो है हमें पूरा अधिकार दे दीजिए, तो ये गैर मुनसिफाना शर्त है। कोई भी मुल्क जो है, आप अपने लिए तो एक पैमाना रखते हैं, इसराइल के लिए एक पैमाना रखते हैं कि वो एटम बम बना सकता है, वो एटॉमिक पावर बन सकता है, लेकिन दूसरा अगर सही कामों के लिए भी एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको भी जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इस पूरी जंग के अंदर, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे लेबनान के अंदर हो, चाहे ईरान के अंदर हो, ईरान ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो जो इंटरनेशनल जो लॉज हैं जंग के, उसका लिहाज रखे। सिविलियंस के ऊपर उसने बमबारी नहीं की है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से इसराइल और अमेरिका मुसलसल सिविल अटैक्स कर रहे हैं। तकरीबन 80,000 के करीब फ़लस्तीन के अंदर शहीद हो गए हैं, लेबनान के अंदर हो गए, और अभी क्या नाम है, ईरान के अंदर भी हज़ारों लोग हताहत हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है पूरे संयम से काम ले रहा है। अभी भी जंगबंदी के सिलसिले में उसने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, बल्कि इसराइल ने जो है बातचीत शुरू होने से पहले ही, जंगबंदी का ऐलान होते ही उसने लेबनान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और अब आज जैसा कि मीडिया में आया है कि आज रात को अमेरिका भी हमले की तैयारी कर रहा है। चाहता तो ईरान जो है अपनी तरफ से भी पेशकदमी करके हमला पहले कर सकता था, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहा है। वो मौका दे रहा है कि एक मरतबा शायद इन लोगों का अकल आ जाए और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये मसला अमेरिका और इसराइल और ईरान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, हमारा मुल्क परेशान है। इसलिए हम आपके माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है, और पूरी मानवता को खड़े होकर के इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हाफिज़ मंजूर अली खान, मैं मुस्लिम फॉरम। करने का, लोगों को बताने का भी दिया है, और करबला जैसे बड़े मैदान के अंदर आप कर रहे हैं प्रोग्राम, तो बड़ी तादाद में लोग भी आएंगे। इसके लिए क्या अपील आप लोग कर रहे हैं, क्या लोगों से कह रहे हैं कि सब समाज के लोग आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि ये ताज़ियत प्रोग्राम जो है ये इंसानियत के लिए है और एकजुटता के लिए है। और एक बात मेरे बार बार सुनने में आती है मीडिया के थ्रू भी और पंपलेट भी और लोगों के पर्सनल भी, कि ये शिया समुदाय और मुस्लिम फोरम और हमारी जो संस्था है वो करा रही है। तो ये प्रोग्राम किसी का ऐसा नहीं है, ये इंसानियत का प्रोग्राम है। इसमें हिंदू भी शामिल हो रहे हैं, ईसाई भी शामिल हो रहे हैं, सिख भी शामिल हो रहे हैं, मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं। एक आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की तरफ से आप ये कहें कि ये जो हमदर्दी रखता है इंसानियत के लिए, ये उसका प्रोग्राम है। और हम अपील भी उन्हीं से करेंगे
کہ جن کو درد ہے ان شہیدوں کے معصوم بچیوں پر، غزہ پر، فلسطین پر، لیبنان پر، ایران پر جو یہ جاہلانہ کائرانہ جو حملے کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کی مذمت کے لیے جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کا خیر مقدم ہے. ہم ان کا سواگت کرتے ہیں. اور انسانیت اور اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا ہے، وہ کسی پر بھی ہو. ہم صوفی مت کے ماننے والے ہمیشہ سے ظلم اور ظالم کے خلاف رہے ہیں، اس لیے ہم اس مجلس میں، اس پروگرام میں پیش ہیں. میں محمد نائب خان. سوال جواب. ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ مسلم سمودائے تمام مذاہب وہ ایک ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور ساتھ میں سارے مذاہب بیٹھے ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے سے بھارت کی جنتا کے لیے یا اس پروگرام کے دوارا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس میں جی آپ. اصل میں ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اس قسم کا پروگرام ہو رہا ہے. اس سے پہلے جون 2022 کو بھی جو ہے اس قسم کا پروگرام ہو چکا ہے، جب نپور شرما نے جو ہے حضرت محمد صاحب کے خلاف جو ہے بیان بازی کی تھی. تو اس وقت بھی جو ہے ایک بڑا پروگرام کربلا کے اندر آیوجت ہوا تھا، جس میں تمام لوگ ہی شریک ہوئے تھے. تو مسلم سماج کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، وہ جب بھی اس قسم کا کوئی موقع ہوتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، وہ ایک جٹ ہو کر کے اپنی آواز کو بلند کرتے رہے ہیں. اور آج بھی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس میں پورا سہیوگ کریں گے. اور شانتی قائم کرنے کے اندر میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر میڈیا اپنا پازیٹیو رول ادا کر دے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر شانتی قائم ہو سکتی ہے. میں جے پور کی عوام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں. سینٹر میلاد بورڈ کی جانب سے میں سیکرٹری کے پد پر ہوں. میں آپ لوگوں سے پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ 15 اپریل بروز بدھ بعد نماز مغرب آپ کو کربلا میدان میں کثیر تعداد میں اپنے سارے پروگرام، اپنے سارے کام چھوڑ کر کربلا میدان میں اپنی موجودگی درج کرانی ہے. اس میں خواتین حضرات، عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے بھی انتظام رکھا گیا ہے. باقاعدہ ان کے پردے کا انتظام ہے، ان کے لیے بالکل محفوظ جگہ ہے. اور کثیر تعداد سے آپ لوگ شرکت فرمائیں. اس میں یہ صرف مسلم پروگرام نہیں ہے. میں پھر اپیل کرتا ہوں ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، جین بھائی، عیسائی بھائی، جو بھی امن پسند لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں. آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے. اس طرح سے جو ریلیشن شپ ہے بٹوین انڈیا اینڈ ایران، اس کی کرنٹ اسٹیٹس کو بھی دیکھتے ہوئے کیا سرکار سے آپ لوگ اپیل کر رہے ہیں اس طرف سے اپنا ایک جو سہیوگ ہے، اپنا ایک سپورٹ ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی شو کیا جائے گا بھارت کی طرف سے ایران کی؟ دیکھیے، ایران اور ہندوستان کے تعلقات آج سے نہیں، بہت برسوں سے تعلقات رہے ہیں. دونوں کی تجارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ابھی پوری دنیا کی طرف سے ایران پر پابندیوں کے باوجود ہندوستان کا جو کاروباری تجارت ہے وہ کنٹینیو چلتی رہی ہے. اور اس وقت ایران مظلوم ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو. اور ابھی تک جو دیکھنے میں آتا تھا اس سے پہلے کہ ہمارا میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سامراجیہ وادی طاقتوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن اس ایپیسوڈ جو ہوا ہے ابھی، جو ثانیہ ہوا ہے اتنا بڑا ایران کے ساتھ میں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. ہم میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت اچھا رول اس کے اندر پلے کیا، اور ایران کے جو حق میں جو خبریں تھیں ان کو شائع کیا، اور جو بدتمیزیاں ان سامراجیہ وادی طاقتوں کے ذریعے کی جا رہی تھی ان کو بھی انہوں نے جواب دینے کا بہت بھرپور کام کیا. اس لیے ہم آگے بھی اسی بات کی گزارش کرتے ہیں کہ میڈیا اپنا جو خوبصورت پہلو ہے، جو لوکتنتر کا چوتھا استمبھ ہے، وہ اسی طرح اپنی بھومکا ادا کرتا رہے گا. اور ایران اور ہندوستان کے جو تعلقات، ہم ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی یہاں اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان تعلقات کو بنائے رکھیں. بقول اگر آپ نے فلسطین کی بات کی جا رہی ہے، فلسطین مظلوم ہے، تو بقول اٹل بہاری واجپئی کے کہ جس طرح سے فرانس فرانسیسیوں کا ہے، جرمنی جرمنیوں کا ہے، اسی طرح سے فلسطین بھی فلسطینیوں کا ہے. تو جو اٹل بہاری واجپئی صاحب کی جو بات تھی وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہمارے ان جو تعلقات رہے ہیں ہمیشہ سے ان دیشوں کے ساتھ میں، وہ تعلقات اسی طرح رہنے چاہیے، اور کسی سرکار کے آنے کے ساتھ وہ چینج، ان میں بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. آپ کا نام؟ نعیم ربانی، سیکرٹری جماعت اسلامی راجستھان. شیر بھائی آپ بھی بتائیں.
मैसेज देंगे इस प्रोग्राम ये जो ताज़ियती प्रोग्राम जलसा इजलास होने जा रहा है 15 अप्रैल को करबला में, ये सिर्फ मिल्लत इस्लामिया का ही नहीं बल्कि इंसानियत का एक इजलास हो रहा है, जिसके अंदर पूरी दुनिया को ये बात बताई जाएगी कि जो जालिम है उसको रोका जाए और मजलूम की मदद की जाए। कहीं से कहीं तक कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ख़ास करके पूरी दुनिया की मीडिया ने इस बात को उजागर कर दिया गया है कि लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूमों के साथ जुल्म किया जा रहा है, और बल्कि इनडायरेक्ट वे में पूरी दुनिया इससे इफेक्ट है कि आज हम देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, जो ज़रूरियात की चीज़ें उसमें भी इफेक्ट पड़ा है। तो हमें इस जलसे के अंदर सभी को इसमें शिरकत करनी चाहिए, बड़ी कसीर तादाद में, और मजम्मत करनी चाहिए। और हमारा जो इस इजलास को करने का असल मकसद है खराज अकीदत पेश करना उन लोगों को जो बेगुनाह शहीद हुए हैं इसके अंदर, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, यही असल मकसद है। और पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान के लिए ये एक हमारा एक मोटो है, इसमें कामयाबी हो। आपसे दरख्वास्त है प्रेस से कि उस दिन आप कसीर तादाद में शिरकत करें, और इसमें जो शिरकत करने वाले लोग हैं वो आलमी सतह के लोग हैं, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कमज़ोर लोग हों। इल्मी एतबार से, तजर्बे के एतबार से, सियासी एतबार से, खिदमात के एतबार से, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर ये सब लोग जो तशरीफ़ ला रहे हैं इनको सुनिए और आवाम तक ये बात पहुँचाएँ। ऐसी हम प्रेस से भी उम्मीद करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं इस प्रेस के माध्यम से भी, ईश्वर से, कि जितना जल्द हो पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान, हक़ के साथ ये अमन व अमान कायम हो जाए, यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश राजस्थान। आप सब लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है जिसमें सारे हमारे भाई वगैरह आए हुए हैं, सब इनका तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसके लिए आप लोग कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरह है, हम जो ये ताज़ियती इजलास कर रहे हैं, जो हमारा शहीद मिल्लत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई रहमतुल्लाह अलैह का एवं इस्लाम के अन्य शहीदों तथा गाज़ा, फ़िलिस्तीन, लेबनान और ईरान के शहीद हुए मासूम बच्चों की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए दिनांक 15 अप्रैल 2026 बरोज़ बुध नमाज मगरिब के बाद जो है संध्या 7 बजे के बाद जो है ये प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। और ये जगह हमारा करबला मैदान जयपुर में है। ताज़ियत के लिए आम आदमी और ताज़ियती इजलास आम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ख़वातीन का और तमाम अवाम, इसके अंदर कोई उसकी कैद नहीं है किसी मज़हब का, सब समाज तशरीफ़ लाएँ इसके अंदर और इसमें आयतुल्लाह ख़ामनई साहब को श्रद्धांजलि दें। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, ईरान, इस्लामिक विद्वान प्रतिनिधि, वली फ़क़ीह भारत में ये रहते हैं, ये आ रहे हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि सब लोग इसके अंदर तशरीफ़ ले आएँ, पब्लिक जितनी है, और इस कार्यक्रम को अच्छे से पीसफुल कर पाएँ हम लोग, बस हमारी यही इल्तिजा है। और मैं सैयद शेर अब्बास ज़ैदी, शिया महासभा राजस्थान से मैं अध्यक्ष हूँ, और इस प्रोग्राम का लोगों ने मुझे कन्वीनर भी बनाया है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम है सारा। ये इसको दोनों का एक लेवल मिला ली वो